the recording will start just अभी फोन किया है तो वो स्टार्ट करेंगे. Just wait for 2 minutes, 1 minute maybe. लो हो गया शुरू. All right, so we talked about the free gyroscope. We talked about the two properties of the free gyroscope, namely the gyroscopic inertia or something called rigidity in space. Basically, rigidity in space is the property which comes by way of gyroscopic inertia. Inertia क्या कहता है? जो चीज कर रहा है कोई चीज वो करता रहेगा. अपूर्वा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो if you are not speaking. Okay, thank you. So inertia says कि जो चीज कर रहा है वो करता रहेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जो रुका हुआ है वो रुका रहेगा. It will maintain its state of rest or motion. So when the rotor is rotating, वो घूमता ही रहता है. वैसे उसी प्लेन में कोई और दूसरा फोर्स तो है नहीं, दो फोर्स बाहर भीतर एक ही प्लेन में घुमाता रहता है रोटर. और so spin axis is remaining fixed in space. Gyroscopic inertia कैसे मेजर करते हैं? Gyroscopic inertia कितना inertia है उसमें? How much inertia is there? How do we measure that? Yes. I omega. जोर से बोलो, नहीं समझ में आ रहा. माइक्रोफोन नजदीक लाइए थोड़ा सा. I omega sir. I omega angular momentum. I omega angular momentum, which is product of moment of inertia I and omega the angular velocity. जितना तेज घूमेगा उतना rigidity ज्यादा, जितना मास होगा उतना ज्यादा, और उस मास में भी रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा. Gyroscopic inertia. Very good. Then the other one that we talked about is precession. What did we see in precession? So the torque applied will always be perpendicular to the plane of the rotation. No, that's not precession. वर्टिकल एक्सिस में रोटेट करेगा. Chevron, correction. It is not the torque precession. It is the result of the torque. The precession is. Okay. Sir. Okay. Precession says that when you apply torque on the spin axis, the spin axis moves in a direction perpendicular to the applied torque. आप यहाँ पे टॉर्क लगाएंगे तो इधर या इधर को जाएगा. आप टॉर्क यूं लगाएंगे तो ऊपर या नीचे जाएगा स्पिन एक्सिस. नॉर्मली जब टॉर्क लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में लगाते हैं उधर ही जाता है. ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दैट सेम डायरेक्शन. बट यहाँ पे जायरोस्कोपिक इनर्शिया में it is happening in a funny way. How? When the torque is applied, the spin axis will go like this. When you apply, it will go like this. Or if you apply like this, it will go here or go here. Now, whether this is perpendicular to the torque or not? Is it perpendicular? Yes, sir. This side also perpendicular. So when I apply the torque, this side or this side, which side it will go? Depends on the rotation. If it is rotating one way, it will go here. If it is rotating the other way, it will go the other way. So that is precession. That means precession is the angular deflection of the spin axis under the influence of torque. In one line, what we can say, it is always moving perpendicular to the applied torque. Chevron, clear? Yes, sir. Did we see this in the prop that we made? Yes, sir. देखा था ना? Yes, sir. Okay. So these are the two properties. Now precession is the movement of this. अगर मान लो
एक रोटर घूम रहा है तो रिजिडिटी हैवी होगी, खूब हाई स्पीड में घूम रहा है, खूब मास है, सो हाई एंगुलर मोमेंटम, लॉट ऑफ जायरोस्कोपिक इनर्शिया, लॉट ऑफ रिजिडिटी, होगा या नहीं? Yes, sir. So if we only feather touch it, will there be precession? Feather touch, will No, there sir. be precession? किसी को छूने से कुछ हिलता है? बस छूने से दरवाजा खोलना है, आपने छुआ सिर्फ तो खुलता है No, नॉर्मली? sir. नो। No, sir. दैट मीन्स No, sir. खोलने के लिए, प्रिसिशन के लिए ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो प्रिसिशन इज मोर इफ द टॉर्क इज मोर। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा ये कि प्रिसिशन इज लेस, प्रिसिशन इज लेस इफ द जायरोस्कोपिक इनर्शिया और मोमेंटम इज मोर। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा नहीं हिलेगा, करेक्ट? नहीं एक समझ बार में आया? वापस। जितनी सही बात है। रिजिडिटी रहेगी उतना ही नहीं हिलना चाहता है ना। रिजिडिटी Yes, क्या sir. कहता है? जो कर रहा है वो करता रहेगा, पॉइंट करता रहेगा स्पेस में। अब हाई एंगुलर मोमेंटम पे अगर होगा तो प्रिसिशन नहीं करना चाहेगा, ये तो रिजिड है, मैं थोड़ा सा छूंगा तो नहीं होगा। अगर मान लो कि इसमें मोमेंटम बहुत कम होता तो थोड़ा छूने से हिल जाता, करेक्ट? रिजिडिटी कम होती, मोमेंटम कम होता। So precession is okay. Precession is directly proportional to torque, inversely proportional to rigidity in space or angular momentum. Is that correct or not? सर जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, तो फोर्स फोर्स उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोमेंटम के। नहीं, वो नहीं, फोर्स नहीं कर, फोर्स तो लगा ही रहे हैं। देखो प्रिसेशन क्या है? ओके, टेल मी व्हाट इज प्रिसेशन? Precision is the deflection of spin axis when a torque is applied in a perpendicular direction. ओके, दैट मींस स्पिन एक्सिस मूव कर रहा है, उसी को हम प्रिसेशन बोल रहे हैं ना। Yes, sir. तो वो मूवमेंट होगी जब फोर्स लगाएंगे। Yes, sir. कम फोर्स लगाएंगे तो कम मूवमेंट होगा। Yes, sir. अब दूसरा एंगल ये है कि आपने एक साइकिल को आते हुए रोका और एक ट्रक को आते हुए रोका, दोनों में फर्क क्या है? सर मोमेंटम का। मोमेंटम का फर्क है। ट्रक रुकेगा, सर उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये कि ट्रक में ज्यादा मोमेंटम है इसलिए आपके रोके उतने फोर्स से नहीं रुकेगा, मतलब वो नहीं अपना मूवमेंट चेंज करना चाहेगा। जितना मोमेंटम होगा उतना वो वैसे ही रिजिड रहेगा, वही चीज करता रहेगा। यस सर। अब आप ये सोच लो कि एक ट्रक का टायर घूम रहा है हाई स्पीड पे, आप उसको घुमाने की कोशिश करते हो, और एक पेपर का डिस्क घूम रहा है उसको घुमाने की कोशिश करते हो। गिवन फोर्स, एक बराबर फोर्स दोनों पे डालेंगे, कौन हिलेगा? पेपर वाला। पेपर वाला सर। दैट मींस ये जो मूवमेंट हुई, जो प्रिसेशन हुआ, वो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है ना। जितना ज्यादा मोमेंटम उतना कम मूवमेंट, जितना कम मोमेंट उतना ज्यादा मूवमेंट। यस। प्रिसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना फोर्स लगाएंगे उतना प्रिसेशन होगा। प्रिसेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजिडिटी और एंगुलर मोमेंटम, जितना एंगुलर मोमेंटम होगा उतना कम प्रिसेशन होगा, वो नहीं हिलना चाहता। आर वी क्लियर? अभी भी कंफ्यूजन हो गया?
नहीं सर, ठीक है सर। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा माइक्रोफोन नजदीक करके बोलो ना, मुझको लग रहा है धीरे धीरे बोल रहे हो तुम लोग। नहीं सर, ठीक है, अभी समझ में आया सर। ठीक है, सो क्लियर। यस सर। We take a look at this on the slides, then we try to talk about कि इसका बिहेवियर क्या होता है when we see it moving, एक रोटर को घुमा दिया और उसका बिहेवियर क्या होता है when we observe it, when it is rotating टेबल पे रख दिया तो क्या होता है। So let me share the screen first. ओके, पहले ढूंढने दो, फाइल निकालने दो मुझे। Okay, are you able to see my screen? Yes, sir. yes sir. यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया था, कल है मतलब पिछले क्लास में। Yes sir. Did we also explain why we are calling precession axis and torque axis, the two axes? For a gyro compass, it is necessary that torque is applied in order to move the spin axis. Torque is applied by gravity, so हमेशा vertical direction में होता है। Torque is applied by the gravity, so हमेशा vertical torque लगती है। जब vertical torque लगेगी, कहाँ गया? जब वर्टिकल टॉर्क लगाएंगे हम यहाँ पे इस एंड पे, तो किस एक्सिस पे घूमेगा ये? Horizontal. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इस पे घूम जाएगा। जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इस एक्सिस पे घूमेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज टॉर्क एक्सिस। बट घूमना तो चाहेगा उस पे, लेकिन घूमेगा किस पे? प्रेसेशन जो होती है, अगर हमने टॉर्क यूं लगाया तो ये इधर को घूम जाएगा या नहीं? सर वर्टिकल लगाया है तो हॉरिजॉन्टल घूमेगा ना। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल घूमेगा। दैट मीन्स व्हाट वी आर ओके, what we are trying to say is that this spin axis, this axis will try to turn, go like this in the horizontal plane only, na? Yes sir. That means it will be rotating about this axis, vertical axis पे घूम रहा होगा। कंफ्यूजन हो गई फिर से? हो गई तो एकदम बिंदास बोलो हाँ हो गया Yes. Yes sir. हाँ सर, कंफ्यूजन। ठीक है, तो अभी हम एग्जिट करते हैं यहाँ से। रुको, अभी एग्जिट करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। वैसे we apply the torque here, we apply the torque here. Is it a vertical torque? Yes sir. Yes sir. This torque is trying to Yes, move it around this axis or not? जब हमने ये फोर्स लगाया तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूम रहा है या नहीं? Yes.
तो ये पॉइंट तो क्लियर है. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क एक्सिस. Yes. Yes. Now, when we apply actually this torque, रुको थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको. One second, please. सर बट ये हॉरिजॉन्टल पे प्रिसिशन की वजह से घूम रहा है ना. नहीं, वो तो अभी सिर्फ हम घुमा ही रहे हैं. ये तो अभी प्रिसेशन तो ये नहीं हुआ ना. प्रिसेशन क्या कहता है, जब हम टॉर्क लगाएंगे ऐसा तो ऐसे घूमेगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घूमेगा. हाँ तो सर वर्टिकल लगा रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टल ही हुआ ना. नहीं, when it is rotating, सर लगा था कि जब and if I apply a torque here, how is it moving? किधर को घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल. Horizontal. हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ना. Yes, sir. Horizontal. यस सर, हॉरिजॉन्टल. किस एक्सिस पे घूम रहा है? Vertical axis. तो इसको प्रिसेशन एक्सिस हमने बोला. ये प्रिसेशन एक्सिस है. प्रिसेशन इसी एक्सिस पे हुआ ना ऐसे. क्या कहते हो? टॉर्क लगाते हैं तो घूमना चाहिए था ऐसे. इस पे हमने टॉर्क लगाया, लेकिन टॉर्क लगाने से घूमता है ऐसे. तो ये प्रिसेशन एक्सिस है, ये टॉर्क एक्सिस है. टॉर्क हमने लगाया तो इस पे घुमाने के लिए लगाया था ना, जो हमने यूं लगाया. So what kind of torque we are applying? Vertical torque. Vertical And torque. that tries to turn it on this, but actually it turns where? On precision axis. Well, precision axis. Is it clear or not? क्लियर सर. Yes, sir. एकदम पक्की बात. यस सर. एकदम सही है ना. कोई कंफ्यूजन नहीं है. No, sir. Okay. So we share once again and go to the slide. अरे क्या होता है ना. Now see and ensure that you understand what we are talking about, if it is all right. All the parts of the system is all known or not. ठीक है. All good. यस सर. Properties of the free gyroscope. The two of them, gyroscopic inertia and rigidity in space. Now just read and ensure that it is understood. We have discussed. It should make some sense for you, and it should be very, very clear. If not, ask me question. ठीक है. Next. We talked about centrifugal force, centripetal force, both acting opposite to each other. So all the particles are moving in the same plane. There is no third force. Only two forces on a particle.
both in same line, एक बाहर की तरफ एक भीतर की तरफ. Next. ठीक है. Next. I hope you're reading. खाली बैठे हुए नहीं हो. अगर कुछ होएगा Yes. तो because we have discussed it, so I'm not speaking right now. अगले टॉपिक पे बात शुरू होगी हमारी. सर इस पे क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी ऑफ जायरोस्कोप. Yes, yes, very much so. Very popular question. What is free gyroscope? What are the properties of the gyroscope? Or simply they will ask in one line, what is rigidity in space and precession? सर क्या हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है? अगर क्या क्या? क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है? मींस जैसे जायरोस्कोप है. हाँ. जैसे अगर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन विद द डायग्राम तब बनाना जरूरी है. अगर नहीं बोला तो जरूरी नहीं है. लेकिन डायग्राम ऑलवेज फैचेस मोर पॉइंट्स देन ओनली द टेक्स्ट. या तो टेक्स्ट बहुत अच्छा से लिखा हुआ हो, लेकिन अगर टेक्स्ट में थोड़ी सी कमी और डायग्राम ठीक है साथ में, देन इट ऑलवेज फैचेस मोर पॉइंट. ओके सर, थैंक यू सर. Always good to make diagram. Wherever possible, make a diagram that adds to your points. General rule. Any theory question? So gyroscopic inertia, it is due to which the rotor continues to rotate, maintain the same plane of rotation, and the spin axis also keeps on rotating in the same way. So henceforth एक चीज जो समझने की बात है, अब हमारा सारा पॉइंट जो है, जो सारा फोकस है, वो रोटर से हटके स्पिन एक्सिस पे आ जाएगा. क्योंकि स्पिन एक्सिस को ही हम देखते हैं कि स्पिन एक्सिस किधर है, whether it is pointing in the right direction or not. For a compass, when we say it is pointing to true north, what is pointing to true north? It is the spin axis which is pointing to north. So rotor का काम is finished. Rotor is rotating. It is providing lot of gyroscopic inertia, and there the job of the rotor is finished. अब सारी बात जो हम करेंगे वो हम स्पिन एक्सिस के बारे में बात करेंगे कि स्पिन एक्सिस क्या कर रहा है, किधर को है, ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, क्या हो रहा है. जो टॉर्क लगाएंगे वो भी स्पिन एक्सिस पे लगाएंगे. रोटर का काम एक था जो वो कर रहा है, दैट इज प्रोवाइडिंग gyroscopic inertia. Is that understood? Yes sir. Next. Gyroscopic inertia can be measured by angular momentum h, which is given by I omega. I, you know, moment of inertia. Omega is angular velocity. mr square by 2 आपने समझ लिया. So when we are saying here
that I depends on mass and radius. How is that related? I is equal to mr square by 2. That means m पे भी डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट, तो उसको रहने दो, वीडियो था, वीडियो तो मैंने दिखा दिया. प्रिसेशन. When the spin axis itself is beginning to rotate, उसको प्रिसेशन बोलते हैं. लेकिन हमारे केस में जो जायरोस्कोप के केस में जो है, what we are talking about, precession is angular deflection of the spin axis under the influence of torque. What happens? It is at 90 degree. Precession is this basically. Is the spin axis of the rotor itself rotating about this axis? Anji, चुप हो गए सब लोग. मन नहीं लग रहा पढ़ने में? लग रहा है सर. सर लग रहा है Yes, सर, देख sir. रहे वीडियो. It is कोई जवाब rotating नहीं आया on तो the मैं other समझ axis. जाता कि बोरिंग हो रहा है आपके लिए. Yes, sir. Spin axis is rotating on second axis. On second axis at the base जो मैंने छोटा सर्कल बनाया उसके आसपास में घूम रहा है. So this is said to be precessing. This axis is said to be precessing. ये प्रेसेस कर रहा है. अभी जो देख रहे हैं मोशन, that the spin axis is precessing. बट ये प्रिसेशन, ये एक्सेस ऊपर में भी हो सकता है, यहाँ पे भी. तो चक्कर गिरने की जगह दोनों तरफ का एक्सिस जो है वो नाचेगा. ये वाला नहीं है सर, क्या बोला लास्ट में? नहीं समझ में आया? नहीं सर, लास्ट वाला क्या बोला? It can rotate anywhere. Let us see. Okay, just 1 second. What you saw was this, correct? हाँ सर. यहाँ पे घूम रहा था. This is the axis. Yes sir. Is it not still doing the same thing, but the axis is here now? हाँ सर. That is what I said. Okay sir. It can rotate. The spin axis can rotate about any axis here. ये यहाँ पे भी घूम सकता है, यहाँ पे भी घूम सकता है, ये यहाँ पे भी घूम सकता है. एक्सिस तो है ना? हाँ सर. ये यहाँ से भी घूम सकता है. समझ गया सर. यहाँ से भी घूम Yes, सकता है, sir. यहाँ से भी घूम. So that is what I said. When the spin axis is rotating about another axis, that's precession. यहाँ पे हम कैसे घुमाते हैं इसको? Spin axis is rotating about which point? Is it rotating about this particular point? यहाँ से ये ऊपर, यहाँ से ये नीचे, मतलब इस एक्सिस पे घूम रहा है कि नहीं? हाँ सर. जब इसको घुमाते हैं तो इस एक्सिस पे घूम रहा है कि नहीं स्पिन एक्सिस? The spin axis is rotating about this vertical axis, correct? हाँ सर. तो यहाँ पे सारा कुछ सेंटर में होता है. स्पिन एक्सिस का सेंटर में जहाँ पे रोटर है उसके साथ स्पिन एक्सिस जो घूमता है उसके साथ. सर ये सेकेंड एक्सिस के प्रिसिशन से
और किसी उस पे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, जैसे अपने इसका स्पिन एक्सिस के प्रिसिशन से अपना वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फर्क होता है, तो वैसे इस पे नहीं होगा? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर स्पिन एक्सिस घूम रहा है तो दैट्स प्रिसिशन। अगर स्पिन एक्सिस फिक्स्ड है तो नो प्रिसिशन। अगर ये चेंज हुआ, कैसे भी चेंज हुआ, किधर को भी चेंज हुआ, तो किसी न किसी एक्सिस पे चेंज होगा ना। मान लो स्पिन एक्सिस ऐसे थी, ऊपर चला गया, तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं? स्पिन एक्सिस इस पॉइंट पे घूम रहा है कि नहीं? यस। तो प्रिसिशन हो रही है। ये इस पे घूम रहा है, इस एक्सिस पे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है या नहीं? यस। दैट्स प्रिसिशन। तो हम क्या करते हैं, क्या बात कर रहे हैं कि जब आप यहाँ पे टॉर्क लगाते हैं, यहाँ पे घुमाने के लिए इसको, तो ऐसे नहीं घूमता, घूमता ऐसे है, तो प्रिसिस हो रहा है ना। यस। इस एक्सिस पे घूम जा रहा है ना, सेंटर में, इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। इज इट मूविंग और नॉट? यस सर। तो अगेन व्हेन यू अप्लाई टॉर्क और इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घुमाने की कोशिश करते हो, इस एक्सिस पे घुमाने की कोशिश करते हो, by applying a torque here, horizontal torque, sorry, vertical torque, the spin axis moves like this. So is the spin axis, ये वाला spin axis जो है लोहे वाला, वो इस एक्सिस पे घूम रहा है या नहीं? Yes sir. So all the movement through the center here, this also through the center, this also through the center, not at one end. One end पे होता तो ये यूं नाचता, लेकिन यहाँ पे सेंटर में है, मतलब ये दोनों ही एंड जो है ऊपर नीचे हो रहा है, so that is precession. Are we good? Yes. Okay, going to the slide once again. Okay, precession, we saw this. Now read it again. Sir, plane and axis are perpendicular, na? Which one? Which one? Sir, plane and axis are perpendicular. हाँ. When the spin axis is moving in one plane, it is actually moving on an axis which is perpendicular to this plane. आपने रोटर को घुमाया, तो रोटर जिस प्लेन में घूम रहा है, एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है या नहीं? Yes sir. इमेजिन कर रहे हो, जो डिस्क Yes है, sir. वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर में एक्सिस है। Yes sir. तो नाउ ट्राई टू इमेजिन दिस, व्हेन द स्पिन एक्सिस इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेफ्ट राइट जब घूम रहा है, आप अपने गर्दन को लेफ्ट राइट घुमाइए, तो किस एक्सिस पे आपका सिर घूम रहा है? लेफ्ट राइट घुमाओ अपने सिर को, किस एक्सिस पे घूम रहा है? वर्टिकल। दूसरी आवाज आई, जिसने पूछा था वो जवाब दे मुझको। आप अपने सर को लेफ्ट राइट देख रहे हैं, किस एक्सिस पे आपका सर घूम रहा है? Sir, vertical. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेफ्ट राइट देख रहे हैं ना, Yes sir. अभी आप सामने देख रहे हैं, अभी 45 डिग्री लेफ्ट देख रहे हैं, 45 डिग्री राइट देख रहे हैं, तो यू आर मूविंग योर हेड in a horizontal plane, but when you are doing so, your head is moving on a vertical axis, correct? Yes sir. Now look up and down. Take your vision upwards towards the sky, then towards the ground. Are you moving in a vertical plane? Are you moving your eyes in a vertical plane, up and down? Yes sir. Is it, which axis it is moving about? Sir, horizontal. Do we understand now what we are talking about?
Yes, sir. So precession causes the spin axis of the gyroscope to turn at right angle to the direction of applied force. Is that okay? इतने देर से हम बात कर रहे हैं Yes, कि sir. the spin axis will move in a direction perpendicular to the applied torque. Now, when I apply torque, the spin, vertical torque, top to bottom, नीचे की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो वो लेफ्ट में भी जाए, राइट में भी जाए, दोनों परपेंडिकुलर है. We already talked that it depends on the rotation of the rotor. रोटर एक तरफ घूमती होगी तो एक साइड में जाएगा, लेफ्ट या राइट में. दूसरे तरफ घुमाएंगे तो उसका ऑपोजिट जाएगा. So don't you think that this is violation of the laws of the motion? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. क्या कहते हो? ऐसी कभी देखी है कि आपने फोर्स लगाया किसी चीज पे और वो सीधी नहीं भाग करके राइट एंगल पे भागे? ऐसा देखा है कभी? No, sir. So how is it happening? Is it not violation of the laws of motion? Actually, it is not. It is very much following the rules of laws, or rather laws of the motion. So what we are going to do now, we are going to see an experiment, and we will see, I would like you to explain what you are seeing and why you are seeing, what is happening, that you will see, and you will explain to me why is this happening. Now that we have done all those discussion, so it should be clear now. Okay, so just hold on, I'm just getting something ready. Yes, one moment. कहाँ गया? We also explained this, that how much precession will happen depending on the angular momentum and the torque applied. जितना torque लगाएंगे उतना precession होगा, जितना rigidity होगी, जितना angular momentum होगा उतना कम होगा. So is it making sense? Precession P is directly proportional to torque, inversely proportional to angular momentum. Is that okay? Is that okay? Okay. So now what we are going to do, we are going to see an experiment, and you have to explain Okay, what. sir. So here I have the rotor and the spin axis, and I'm trying to turn it about this axis so that there is high amount of angular momentum, and see the behavior. What will happen if I right now, अगर मैं दोनों एंड पे रखा हुआ हूं, एक एंड पे हटा दूं तो क्या होना चाहिए? अगर एक हाथ से
एक तरफ का हाथ खींच लूं ऐसे सस्पेंडेड में, एक तरफ का हाथ हटा लूं तो क्या होगा? गिर जाएगा अभी तो नीचे सर। गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन। तो जैसे ही हाँ मैंने सर, हाथ फोर्स हटाया तो नीचे की तरफ गिरेगा। Now take a look what happens in this case when we are turning it at very high RPM and there is angular momentum. I am hanging it by one end. सर सही लग रहा है सर। What do you see? What are the motions observed? And keep looking, keep looking, keep looking. देखो धीरे धीरे इसका रोटेशन कम हो रहा है, रोटेशन कम हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम कम हो रही है इसकी। यस सर, What happened? यस सर, गिर गया। क्यों गिर गया? पहले क्यों नहीं गिरा? एंगुलर था? मोमेंटम कम हो गया था रेवोल्यूशन बढ़ गया था। एंगुलर मोमेंटम कम हो गया सर। बढ़ गया था। मतलब पहले नहीं गिर रहा था, इट वाज होल्डिंग अप लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिजिडिटी इन स्पेस। यस So it was holding like this. But then why was it moving like this? सर बिकॉज सर क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही थी तो प्रिसेशन की वजह से वो वैसे घूम रहा था। Yes. जब यहाँ पे था तो sorry, one end was getting pulled down by the gravity. This end was getting pulled down by the gravity. इधर खींच रहा था और उसके चक्कर में क्या हो रहा था? इधर को घूम रहा था। Was it going like this? यस यस सर। Now Yes, sir. again take a look at this. Now take a look at this once again. ओके सर। And tell me the behavior. Why is this change in the behavior that you are seeing, if at all? Now rotating once again, hanging it like this. Do you see any change? सर अलग डायरेक्शन में घूम रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रहा है। क्यों? डायरेक्शन सर। रोटेशन का वो रोटेशन चेंज अलग है। सर रोटेशन क्यों? अलग है सर। Moment रोटेशन change इस बार ये Moment अपोजिट change स्पिन कर एक्सिस अपोजिट घुमाएंगे। और Direction of rotation was one way and the other way. जब मैंने इसको यूं घुमाया था तो इधर को घूमी थी। जब यूं घुमाया तो इधर को घूमी। So precession was happening in the perpendicular direction. Remember, the gravity was pulling it down like this, but it was going this side or this side. This side or this side, dependent on what? Rotation. Either this side or this side. Clear? यस यस सर। So now we have an experiment to do. We have a free gyroscope जिसको इस पे लगा दिया है और मैंने इसको हाई आरपीएम पे घुमा के छोड़ दिया। फ्रिक्शन होती है, लॉसेस होंगे तो रुक जाएगा। जैसे ये रुक गया, घुमाया तो था लेकिन रुक गया। क्यों रुक गया? क्यों धीरे हो गई? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सर। बेयरिंग के एयरिंग का फ्रिक्शन है, एयर का फ्रिक्शन है, दैट इज मेकिंग इट स्टॉप। सो हमने, लेकिन पंखा जो है हमारा, हम रात में चलाते हैं, सुबह तक चलता मिलता है। क्यों? कंटिन्यूस में मोटर की वजह से मूवमेंट ये जा रहा है। पैसे लगते हैं, पैसा से चल रहा है वो, करंट चल रहा है सर। करंट के पैसे देने पड़ते हैं ना। सो लॉसेस आर फुलफिल्ड और कंपनसेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए वो चलता रहता है। तो इज इट पॉसिबल टू रोटेट इट बाय मोटर आल्सो सो दैट इट इज कांस्टेंटली रोटेटिंग? यस सर। So it is rotated like this, constant, very high RPM. घुमा के हमने छोड़ दिया, ऐसे करके इसको रख के छोड़ दिया और टेबल पे रख के चले गए। When it was like this, हमने ताला बंद कर दिया, इसको घुमा दिया, मोटर लगा करके घुमा दिया।
यूं छोड़ के गए जब ऐसे घूम रहा था। 6 घंटे बाद मैं लौट के आता हूं, आप लौट के आते हैं कमरे में, ताला खोला, आपकी उम्मीद क्या है, कैसा मिलेगा ये आपको? हाउ डू यू सी यू विल फाइंड दिस रोटर आफ्टर 6 hours ऑफ रोटेशन, इट वाज रोटेटिंग फॉर 6 hours लाइक दिस। जब आप कमरे को खोल के देखेंगे तो क्या मिलेगा, मिलना चाहिए आपको? सर ये एक्सिस सेम नॉर्थ जगह पे साउथ पॉइंटेड। डायरेक्शन में होगी। 1 by 1 अपूर्वा, तो इसकी जो एक्सिस है स्पिन एक्सिस वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। किधर को पॉइंट करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ जो लाइन रहता है ना। नॉर्थ साउथ कहां से आ गया ट्रू इसमें? नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ, नॉर्थ साउथ कहां से आ गया? हमने तो कहा सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल, ऐसा स्पिन एक्सिस हॉरिजॉन्टल था, घुमा के छोड़ दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि इधर को उधर को मुड़ जाएगा, नॉर्थ साउथ को चला जाएगा? अपूर्वा, सर ये मतलब मोटर से घूम रहा है या ऐसे ही? मोटर से घूम रहा है रे भाई, घूम रहा है। सर जिस डायरेक्शन में छोड़ के गए थे पॉइंट करके, उसी डायरेक्शन में मिलेगा। ऐसा दिव्यांश ने कहा कि जैसा हम छोड़ के गए थे, जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे था ऐसे, वो वैसे का वैसे टेबल भी वही मिलेगी मुझको, ये भी वैसे मिलेगा, टेबल अपनी जगह पे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया समथिंग एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, टेबल वहीं पे मिलेगी। दिस आल्सो हॉरिजॉन्टल inertia, it will maintain its orientation, the plane of rotation will be same, and so the spin axis will also be pointing in the same direction, correct? Yes. Okay, आपने कहा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, आपने फिर ताला बंद किया और फिर चले गए, फिर 6 घंटे बाद लौट करके आए। आपकी उम्मीद क्या है, क्या क्या मिलना चाहिए आपको? फिर से वैसे ही मिलना चाहिए, टेबल वहीं पे, यस सर। टेबल के बगल में एक कप रखी थी चाय की जो आप पी के गए थे, वो भी वहीं पे, इनर्शिया। ये भी ऐसे ही उठता हुआ मिलना चाहिए, करेक्ट? करेक्ट? हाँ सर। हाँ। मैंने जब Yes, sir. एक्सपेरिमेंट किया तो मुझको उल्टा नजर आया कुछ। मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं ताला लगा के चला गया ऐसे ही घुमा करके, 6 घंटे बाद आता हूं तो देखता हूं कि घूम तो रही है लेकिन ये ऐसे घूम रही है। मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया था कि पहचान सकूं कि कौन सा एंड, तो ये वाली एंड मैंने उधर रखी थी। 6 घंटे बाद आया तो मैं देख रहा हूं कि घूम तो रही है लेकिन ऐसे घूम रही। मैंने कहा ये क्या हुआ, कुछ जरूर दाल में काला है। मैंने कहा फिर से टेस्ट करता हूँ, फिर से टेस्ट करता हूँ। मैं फिर से ताला बंद करके चला गया, 6 घंटे बाद वापस आया, मैं देखता हूँ घूम तो रही है लेकिन इस बार ऐसे घूम रही। वो जो मार्क किया था इधर वाली एक्सिस इधर को चली गई। अर्थ के रोटेशन की वजह से। किसके? अर्थ के रोटेशन की वजह से। यस। तो यहां से शुरुआत किया था, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे। 24 घंटे में वापस अपनी जगह पे आ गया। Remember, we said rigidity in space. This is rigidity, having rigidity in space. The pointer is looking in space in the fixed direction. Supposing there is a star, supposing this was done 6 o'clock in the morning when the sun was rising, आपने इसको सन की तरफ दिखा के छोड़ दिया। 6 घंटे में 12 बजे सन कहाँ होगा? सर पे एकदम ऊपर होगा। Where is it looking now? Yes, sir. ऊपर। Again looking at the sun only. शाम को 6 बजे, where is the sun? Setting. Setting. It is still looking to the sun. Looking to the sun. Next day morning, again sunrise. It is following the sun like this. That means
sun is fixed or we are fixed, sun is moving? So we are moving, sun is fixed. We are moving, sun is fixed. But since we are standing on earth, we see the sun moving, correct? Yes. तो मैं घूमती अर्थ पे हूं, ये फिक्स है, तो मैं घूमूंगा तो ये घूमता हुआ दिखेगा कि नहीं? मैं अगर घूम जाऊं इसको ऐसे, तो मुझको ये घूमता हुआ दिखेगा या नहीं? Yes, sir. आप ट्रेन पे बैठते हो तो प्लेटफॉर्म घूमता हुआ चलता हुआ दिखता है कि नहीं? Yes, sir. आप Yes, sir. ट्रेन इज अ फिक्स्ड थिंग, ट्रेन में तो आप फिक्स्ड हो, लेकिन चल रही है ट्रेन तो आप प्लेटफॉर्म को जाते देखते हो, अपने आप को जाते देखते हो? पेड़ चलता So है, platform. गाय चलती है, प्लेटफॉर्म जाता है। प्लेटफॉर्म सर। एग्जैक्टली। और प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो क्या देखते हो? सर ट्रेन चलता ये है। ट्रेन चल रही। Train. ट्रेन चल रही है। तो हम अर्थ पे खड़े हुए अपने आप को स्टेशनरी देखते हैं, लेकिन कोई अगर बाहर में खड़ा हो तो देखेगा कि अर्थ पे आप नाच रहे हो, ऐसे आपका मुंह चेंज हो गया। यहाँ से कोई देख रहा है, अभी आप इधर देख रहे हो, आपका मुंह इधर इधर हो जाएगा। So what we are trying to say that it is having a property called gyroscopic inertia or rigidity in space, due to which the spin axis is pointing to a fixed point in space. But since the earth is moving, there is an apparent motion shown by the spin axis, in which it is going up and all the places. ये 24 घंटे में नाच करके वापस आ जाता है अपने जगह पे. It is the motion which is apparent motion. Actually, this is fixed. You are moving. तो सर लेकिन इसको तो अपन ट्रू नॉर्थ की तरफ फिक्स करते हैं। अभी अर्थ के नॉर्थ की तो बात ही नहीं करी हमने. नहीं, जो जैसे जायरोस्कोप में जो होता है तो उसमें तो अपन ट्रू नॉर्थ की तरफ फिक्स करते हैं, बट ट्रू नॉर्थ तो फिक्स है ना अपना अर्थ पे। सेलेस्टियल बॉडी पे फिक्स करते हैं ना सर उसको, जैसे पोलैरिस पे, पोल स्टार पे। कमिंग, अभी हमने नॉर्थ साउथ की बात नहीं करी. ओके सर। अभी हमने, मैं आपका पॉइंट समझ गया कि तो ट्रू नॉर्थ की तरफ होगा. उसके ऊपर भी आएंगे, ट्रू नॉर्थ के ऊपर भी आएंगे. अभी हम जो वी आर ट्राइंग टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ दिस ऑन द रोटेटिंग अर्थ, हाउ द जायरोस्कोप इज गोइंग टू बिहेव ऑन रोटेटिंग अर्थ. हम नॉर्थ की तरफ भी दिखा के रखेंगे इसको, ईस्ट वेस्ट की तरफ भी दिखा के रखेंगे. वी विल स्टडी एवरीथिंग. ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड. इतना क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आप बोलेगा बस करो सर, बहुत हो गया. ठीक है? हाँ जी सर। Yes, we'll discuss everything. So we are going step by step. Remember, क्लास के शुरुआत में बोली थी कि initially we will just discuss what is the gyroscope and the behavior. Then we start making it into a compass. नॉर्थ की बात तब आएगी जब कंपास बनाने लगेंगे. अभी तो कोई नॉर्थ साउथ नहीं, अभी तो सिर्फ जायरोस्कोप क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है. इज दैट ओके? यस सर, दैट इज ओके. अगर Yes, नॉर्थ की तरफ भी नहीं करते हैं सर, मैं नॉर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो अपन ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी जैसे, तो ये अर्थ के मूवमेंट से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अर्थ पे ही किसी डायरेक्शन में फिक्स करना हो तब कैसे करेंगे इसको? वो तो आगे आएगा ना कि इसको अर्थ पे ठीक। कैसे डायरेक्शन फिक्स करें. ठीक है सर, ठीक। वो तो आगे आएगा ना. अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं. हमने अभी तो रिजिडिटी सिर्फ बात करी ना, तो रिजिड हो गया तो स्पेस में रिजिड हो गया, यही बोल रहे हैं. और चूंकि हाँ, ये स्पेस में रिजिड है, और स्पेस में क्या चीज है, एक स्टार है वहां पे. हाँ सर। स्पेस में इतना दूर में है कि वो फिक्स्ड साल दर साल, सैकड़ों साल, हजारों साल वहीं पे दिख रहा है. हाँ सर। तो दैट इज अ फिक्स पॉइंट इन स्पेस. हाँ सर। लेकिन फिर भी सारे स्टार्स को हम घूमता हुआ देखते हैं. क्यों? स्टार्स को घूमता हुआ देख रहे हैं. क्यों? मूवमेंट ऑफ अर्थ। क्योंकि हम घूम रहे हैं. मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ के चलते इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर मूविंग. हम इधर को जाते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
So the sun is coming from east to west. अर्थ यूं रोटेट करता है, सन उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है. All the stars are moving in that direction. So what we are saying that the spin axis is rigid in space. It is remaining fixed in the space. So it keeps on pointing to a fixed direction in space. But since the earth is rotating, we see an apparent motion of the spin axis कि ये यहाँ पे घूम रहा है. चूंकि हम अर्थ पे खड़े होके देख रहे हैं तो लगता है कि ये घूम रहा है ना, ये नहीं घूम रहा है. एक्चुअली ये फिक्स है, अर्थ घूम रहा है. अंडरस्टूड? यस सर. Yes. अगले क्लास में देखेंगे. Yes, sir. Further from here, then we will study the behavior कि अगर इसको हमने इक्वेटर पे रखा, कहाँ कहाँ पे रखा, उन सब के केस में we will talk about this, how the gyroscope will behave on earth. एक तो देखा कि मोशन होगा, बट इस मोशन को और डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि अगर इधर को जा रही Yes, है, sir. इधर को जा रही तो जमीन से ऊपर भी जा रही है, जमीन से ऊपर भी चला गया, यहाँ था अभी यहाँ चला गया तो इतना ऊपर हो गया, और यहाँ से इस तरफ को भी गया. सो और डिटेल में बात करेंगे, बट we will Okay, sir. study more about the movement of this spin axis. ये जो मूव कर रहा है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें अगले क्लास. Okay, sir. Thank you. Questions? Thank you, sir. Thank you, Any sir. questions so far? Okay, good. Thank you so much. Thank you, sir. चलो, okay. Bye bye. Have a great day, all of you. Thank you, sir.